Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Today we have a very special guest with us. She is none other than your very famous, well-known Pajama Girl. Hello Monica, welcome to Placement Buddies. Thank you so much for having me and for this pretty introduction as well. Yeah. So guys, I hope every one of you know Monica, the Pajama Girl. She is here to share her experience in Byju's. She has worked for Byju's for a few months and then she left Byju's. So Monica, today we will be discussing about Byju's and this is apparently the next episode of our very famous playlist, which is Company Insights. So Monica, before proceeding further, please tell us something about yourself. Guys, before we move ahead, you might not know that many of you, about 93% of you, do not subscribe to the channel. Please subscribe to our channel, turn on the notifications, do press the bell icon. I request you all. Now let's continue. My full name is Monica Chaudhary. I basically belong from Agra, from the Taj Mahal city. Yeah. And I live in Delhi NCR from a long time now. And I have been working since 2019. So I'm a very camera friendly person. I'm currently into social media specialist kind of a role. So I do a lot of research and help women safety on platforms and something like that. Other than this, I do like writing poetry, and I do listen music 24/7, Punjabi songs. And other than that, I do find vlogging relaxing. So I do some quite informational as well as funny vlogs on my channel. Okay. How is Pajama Girl relevant to your personality? Okay, so it is first thing is it's about comfort, and reality. Like Correct. the way I am at my home, exactly the same I am here with people other. So I can't fake things, Correct. So that's the relation between Pajama Girl, like the name and me, my personality. It means comfortable, right? Stable and real. Real. Be real. Correct. Yeah, exactly. So, Monica, how did your journey started with Byju's? Was it an on-campus offer or off-campus offer? Okay, so this is something different in my case. Okay. It was So the time was like a COVID time. Obviously, I was doing some very good, pretty job in a good company as well. But I joined by I joined a company related to content only. They have multiple apps. I can't name it now, obviously. Sure. There are reasons. So I joined that before COVID, just a month ago. So the problem there was that they were not sure that they need the person for a long time because they were also not ready for the COVID thing, obviously. So the thing was that I was not finding the environment or everything good, and they just want to that you can leave after a month or maybe. So I didn't wait for them to just lay off me. I Correct. just dropped it. Yeah, that I should be doing something meaningful. So after that, I started. My own thing, my website with my college people, and started doing like news things, information, what's going around me, around the world and all. So but after some time, जो लोग starting से job culture में रहते हैं like me, right after my graduation I joined, I started working. I didn't wait for masters, or I didn't wait कि देखते हैं type वाला. Correct. No, Mhm. started working. So it was kind of experience for me कि मुझे independent रहना. I can't be dependent on my parents for anything, not especially financially. Correct. Very frank, Correct. I can't. Yeah. So I started feeling, मतलब मेरे पास जो भी savings and all थे, मतलब मुझे ये feel होने लगा कि that I should be doing something जहाँ से I can earn a good money, Exactly. I can't be doing my thing without expecting. Although अगर आप अपना कुछ कर रहे हो, you can't expect not lot of money, even not a small amount of money. Correct. For a long time. You have to wait for that. But at that time मेरे पास time भी नहीं था और ना patience थे, तो randomly that Byju's, someone mailed me like that there's a position for social media executive and all. So I was pretty interested in that. But I applied for social media executive there, but I received a call for BDA. Okay. Yeah, profile. So that was the confusing part. But then I thought that why not? I can at least do something at my home. I can that would be, मतलब मुझे कुछ अच्छा experience भी मिल सकता है maybe. और Correct. क्या पता sales में interest आ जाए with the time.
एंड द कोविड टाइम वैसे ही इतना ज्यादा डिप्रेसिंग था लोगों के लिए, और जब आप घर पे खाली बैठे होते हो तो वो और ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है. Exactly. Mm-hmm. So that was the stage where when I कि चलो अभी करते हैं. Interviews was pretty good, so I thought कि लाइफ भी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, बिकॉज वी एक्सपेक्ट मतलब इंटरव्यू के थ्रू ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी कैसी हो सकती है, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद अस एंड ऑल. So all was good. I joined Byju's at the time of, I mean, it was July, I guess, in COVID time, yeah. Okay. So how long you were there in Byju's? What was your duration? I was there only for the training period, frankly. After that, I was there for more 2 months something after even. But yeah, there was also problems. I had some health issues and all, so I dropped. Correct. So during your training period, like what was the work culture and how did they actually executed that training program? Okay, so in starting, actually, the thing was, there was very, very strange and weird for me, the training part, the whole training part, because I am from journalism background. I have worked in entertainment media. I wrote for magazines and all. I have faced politics. I have faced toxic environment as well. But the way Byju's, or maybe what my experience is exactly, I'm not claiming for others, but my experience was pretty like weird. I mean, they start their training like it was for 8 to 12 hours. You are sitting with your laptops and you are learning, like you are learning about the courses, every small details, and I don't know, maybe obviously if you are going for a sales, तो आपको उसकी information होनी चाहिए, obviously. Correct, because but you have to sell this course, right? Exactly, I understand that, and but there's a way to execute that thing. Correct. तो मुझे लगता है कि वहाँ पे betterment हो सकता है, जिससे कि चाहे fresher join करे या experience join करे, तो उसको ऐसे pressure feel नहीं हो, Exactly. या फिर उसे ऐसा ना लगे कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ types. So that's the main concern. So बहुत ही और एक जो मतलब एक ट्रीट करने का एम्प्लॉइज का एक वे होता है, वो मुझे कहीं भी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा. Okay. बट आई थॉट कि ओके, लेट्स ट्राई. Yeah. Yeah. So उनका जो मतलब execute करने का तरीका था, do they like really follow some kind of methodology कि ठीक है ये चीज सिखाने के बाद हम लोग ये सिखाएंगे to the BDA, or it was all random? No, it was not random. They have this particular timetable or schedule, I say. So they follow for the first 15 days and after 15 days, like that. So they teach you the basic things and about the courses, every details, And the worst part is that you have to sit in front of your laptop for the very long hours, Correct. आप सिर्फ थ्योरी किसी को रटा कर भी कुछ नहीं करा सकते. In my what I think. If you have to मतलब अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो ठीक है, इन्फॉर्मेशनल नॉलेज आपको देनी चाहिए अपने एम्प्लॉइज को, बट साथ साथ यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल. वो प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं, बट आफ्टर 12 days, फॉर द 1 or 2 days, एंड दैट वाज आल्सो वेरी वेरी बेसिक. आपस में लोग कॉल पे जस्ट यू कैन कॉल द अदर पर्सन, योर कलीग, एंड जस्ट रिकॉर्ड द पार्ट एंड डू द काइंड ऑफ अ डेमो, द सेल्स. So it was kind of that, yeah. Okay. And since you mentioned that laptop के सामने काफी लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है, so what was the working hours normally? Okay, so what I remember was from 10 to 10 morning, or sometimes 9 to 8 hours. So obviously we do all work, but it was more than 10 to 11 hours sometimes. Correct. But it was not working properly, but because it was the time of training, so we were just listening to our trainee person and kind of that. So yeah, You had to stay attentive. That was the thing, na? I mean, you should have little leniency in your training time, not in a way that you just let it be कि कुछ भी चल रहा है, वैसा वाला leniency नहीं, but Correct. you should be at a ease. तो आप अच्छे से सीख पाते हो, मे बी, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज एक फ्रेशर अगर आता है, सपोज आई वॉज नॉट अ फ्रेशर एटलीस्ट, तो मुझे थोड़ा सा था कि चलो कोई नहीं, बट कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है तो उसको ऐसा लगेगा कि अगर अभी मेरी लाइफ इतना टफ हो रही है तो आगे क्या होगा, Correct. So sales में या business development में, what do you think are the pros and cons in this field as compared to other fields?
ओके, सो अगर जनरली सेल्स में बात की जाए प्रोज एंड कॉन्स की, तो भी मतलब मैं बायजूस के बारे में बात करती हूँ. Correct, आई हाँ. मीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट तो आई शुड बी टॉकिंग अबाउट बायजूस ओनली. या सो वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स बहुत क्लियर है. लाइक यू नो, इफ आपको सेल्स करना है और स्पेशली हार्डकोर सेल्स करना है, यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मतलब sales and normal, like hardcore sales and normal sales. Okay, there are different type of sales, and business development का profile भी बहुत different होता है company to company. You don't Correct. have to sell every time if you are at a position of business development. There are so many companies who hire business development people to collaborate with other companies or Correct. other partners or whatever. क्या so what I have seen was this only. तो मुझे लगा था कि ऐसा इतना होता होगा. Although there are so many videos, there are so many reviews on Quora as well. You can read about that कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या कुछ भी है, बट जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करते हो आपको पता नहीं चलता है. तो प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद प्रोज फर्स्ट. ओके, कॉन्स अपन बाद में डिस्कस करते हैं. सो Sure. प्रोज इज लाइक यू विल गेट अ गुड सैलरी. आपको इतनी सैलरी स्टार्टिंग में कहीं नहीं मिलेगी. I am damn sure about it because I have been working from 3 years and I have seen that thing. So ये आप कर सकते, मतलब good salary, no doubt. Second good thing is that if you are like literally want to go in sales, तो Byju's is a platform जहाँ पे आप बहुत आगे तक लीड कर सकते हो. Correct. और yeah, third is that it's easy to join Byju's. मुझे जो लगता है एज इन के जब आप एक अर्ली स्टेज पे होते हो, फ्रेशर्स के लिए स्पेशली अर्ली स्टेज पे होते हो, तो आपको पता नहीं होता है आप कहाँ जाना है. आपको पता है सपोज आपको जैसे सेल्स करनी है, बट यू डोंट नो दैट वेयर यू व्हाट्स द राइट प्लेस फॉर यू नो. सो यू आपके पास एक एटलीस्ट ऑप्शन है दैट यू कैन जॉइन बायजूस अगर आप सेल्स चाहते हो तो. सो दीज मतलब जल्दी ग्रोथ है अगर आप उस केस में मेहनत करते हो. तो मेहनत का आई मीन व्हाट दे हैव स्टैंडर्ड्स. तो अगर आप उन्हें मैच करते हो विद टाइम तो या देयर इज अ गुड ग्रोथ. आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग फ्रॉम लाइक 0 टू आई मीन वेरी वेरी गुड स्टेज पे हैं वो लोग आज. सो दीज आर सम प्रोज दैट इफ आई से अबाउट लाइक इन इनफॉर्मल वे में, तो इजी मनी. Correct. Easy money, not as in कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, and not in that way, but yeah, there are people who do a lot of hard work, then also उनको नहीं उतना अमाउंट वो अर्न कर पाते हैं. तो बिल्कुल, उसके वे हाँ. में अच्छा है. कॉन्स की बात की जाए तो सबसे पहला तो यही है दैट नो वर्क लाइफ बैलेंस. ओके, सेकेंडली अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि दैट यू विल बी हैविंग गुड एनवायरनमेंट, सो वो भी मुझे नहीं लगा. मोस्ट ऑफ द टीम्स में जितना मैं जानती हूँ, there are people जिनका शायद अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हो, बिकॉज काफी लोगों ने बोला था कि इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजर एज वेल, यू नो. Yeah. एंड इट इज राइट एज वेल, क्योंकि हम भी जहाँ पे भी मैं करंटली भी हूँ या कोई कहीं पे भी काम कर रहा हूँ, इट डिफर्स कि अगर आपका मैनेजर जिस तरीके का है या फिर आपका जो भी हायर अथॉरिटी है वो आपके साथ कैसी है, उससे काफी अफेक्ट होता है आपका प्रोफाइल एंड आपका वर्क इन योर ऑफिस. सो कौन से टॉक्सिक एनवायरनमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. थर्ड, अगर आपको लग रहा है कि आप इसको ऐसे ही ज्वाइन कर रहे हो तो आप उसको ऐसे ही नहीं ज्वाइन कर सकते हो. यू हैव टू गिव योर लाइक I don't know, not just 100%, you just have to give a lot, I mean, from your personal life, from your, आप एक अपना ओपिनियन भी खो देते हो वहां पे जाके. जैसे there are people who उनको लगता है कि अभी भी मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बायजूस से रिलेटेड आते रहते हैं, और मैं सच में बहुत सारे तो इसलिए आंसर नहीं करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऑन बेस ऑफ माई एक्सपीरियंस किसी का भी कुछ भी डाइसी हो, परसेप्शन खराब हो जाए. Exactly, I don't want that. But I say just one thing, that if you really want to do sales, and तो आपको ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको लीड करा सकता है बहुत अच्छी जगह पर. और कॉन्स की बात ये भी है कि मुझे लगता है एक वे ऑफ लाइफ नहीं है वहां पे. व्हाट आई हैव फेल्ट दैट इवन बहुत सारे सीनियर लेवल्स तक द पीपल डोंट नो हाउ टू टॉक, मैन. आई डोंट नो, इट्स वेरी blunt answer to say, but maybe जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ या जो भी है, you lost that social courtesies, or maybe I don't know, it's just not for me. It was not just for me. So मतलब और लोगों का भी सेम एक्सपीरियंस था काफी. सो कॉन्सिक्वेंसेस इतने सारे हैं, मतलब इस बेस में अगर आप फ्रेशर हो तो अगर बहुत सारे जैसे इंजीनियर्स को मैंने देखा है कि पास आउट होते ही वो बायजूस ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर वो सोच बिकॉज इतना जो ऑफर कोई नहीं करता है बाकी कंपनीज. सो वहां पे जाके फिर वो पहले वो अच्छा कर रहे होते हैं, दे वांट मे बी दे वांटेड टू जॉइन सॉफ्टवेयर और
other departments, but वहां पे जाके उन्हें लगता है पहले कि ट्राई तो कर लेते हैं, फिर वो जब वहां पे हाँ होता नहीं है उसके एक साल बाद they started looking around and they just get very stressed. मतलब I have seen people like they are in, मतलब frankly I have seen the worst cases. People are in depression that okay अभी हमने एक साल तक कर लिया, they earned money as well, अब क्या करें, because we correct. can't do this for our whole life. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विच जॉब्स यू नो लाइक आप एक लेवल के बाद ही 3 years ऑफ एक्सपीरियंस या 5 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद ही इट गेट्स इजियर टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज बट 1 साल 1.5 साल या उससे कम इट गेट्स एक्चुअली डिफिकल्ट टू स्विच जॉब्स इन द मार्केट Exactly. Also, you get a lot of confusion in your head कि Correct. वहाँ पे आप सेल्स की होती है. Also उससे relevant sales मिलना, अब आपको सेल्स तो करनी नहीं, you have to switch your field as well. करेक्ट And it's even tough for the same field people to switch jobs. एग्जैक्टली It's easy to have a बहुत बहुत मुश्किल होता है एक अच्छी जगह पर, मतलब जॉब्स मिल जाती हैं. I'm not saying जॉब नहीं मिलती हैं, जॉब्स तो मिल जाती हैं, but that when you think about ease at your peace and वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये थोड़ा टफ होता है. बट आफ्टर बायजूस बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें अभी, सो वो क्लैरिटी नहीं रहती. व्हाट आई वांट टू से इज, सो दिस इज समथिंग. सो मोनिका एज यू हैव मेंशन्ड कि सैलरी मतलब प्रोज में तुमने जो मेंशन किया कि सैलरी काफी अच्छी मिलती है. नॉर्मली जब भी बायजूस की बीडीए के बारे में ऐड आती है या देयर इज अ जॉब नोटिफिकेशन दे ऑलवेज डू मेंशन 7 से 10 LPA या 5 से 10 LPA. सो हाउ ट्रू, मतलब वो बात कितनी एक्सटेंट तक सच है? Is it really up to 10 LPA or like मतलब वो कितना तक है? Okay, so it was at my time what I have like seen and heard from my other people and also जो मुझे experience मिला, so there was something 5 to 7 उनके लिए होता है जो from office work करते हैं, right? Okay. So there were females mostly. पहले वो on site पे नहीं भेजते थे females को, अभी का मुझे idea नहीं है. And जो लोग on ground होते हैं most of the time males, तो उनके लिए 7 to 10 का पैकेज होता है, तो ऐसा कुछ होता है. बट या दिस इज रियल, आई मीन द अमाउंट थिंग इज रियल, व्हाट दे क्लेम इज राइट, बट आफ्टर अ सर्टेन लेवल इट्स जस्ट नॉट के यू जस्ट जॉइन एंड यू विल गेट द होल मनी, ऐसा नहीं होता है. स्टार्टिंग में फॉर 2 months यू विल बी गेटिंग द बेसिक ट्रेनिंग अमाउंट, दैट इज समथिंग अराउंड आई गेस 22 to 25K पर मंथ. ऑल्सो उसमें आपको कोई भी लीव एंड ऑल नहीं लेनी है. अदरवाइज ऑल्सो आपका उसमें कॉलिंग टाइम जो होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द बेसिक अमाउंट, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट, सो देयर विल बी डिडक्शन but I have seen a lot of people who are earning this 7 to 10 thing. Okay, so मतलब ऑन साइट या ऑफ साइट वो डिपेंड करता है. अगर आप साइट पे जाके ग्राउंड पे जाके चीजें एग्जीक्यूट करा रहे हो देन यू गेट मोर अमाउंट, राइट? Yeah, there's a difference in like offer as well. Starting से ही डिफरेंट ऑफर दिया जाता है अगर आपको ऑन साइट के लिए हायर किया गया है या फिर फ्रॉम ऑफिस के लिए हायर किया गया है. ओके So, ओके. पहले ही पता होता है वो चीज. या और एरिया सेल्स मैनेजर बनने के लिए कितना टाइम लगता है या कितना साल के एक्सपीरियंस लगता है? ओके, सो ये भी मतलब डिफरेंट केसेस हैं वहाँ पे बायजूस में जो मैंने देखे. देयर आर पीपल हु हैव डन इन लाइक 1.5 और 2 years में उनको नेक्स्ट पोजीशन मिली है एज अ मैनेजर. बट देयर आर पीपल जो नहीं भी कर पाते, लाइक दे टेक लॉन्ग टाइम. उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इफ यू हिट योर टारगेट्स, ऑल्सो इफ यू ओवर अचीव योर टारगेट्स, द ओनली रीजन इन बायजूस इफ यू वांट टू ग्रो ना, सो यू हैव टू डू द टारगेट्स थिंग्स. अगर आप ओवर अचीव, तो जितना ज्यादा ओवर आप अचीव कर रहे हो, जितना ज्यादा आप उनको मतलब टॉलरेट कर रहे हो, आप कुछ कह नहीं रहे हो, एंड यू आर डूइंग योर वर्क एंड ओवर अचीविंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज द ओनली वे टू reach at a certain level. I have some close people as well. They worked in Byju's and they did a really amazing job. Okay. I mean, so there's my friend. He was the senior manager for a long time, and yeah, he did quite well. So yeah. Okay. And how do they treat people from technical and non-technical background? उनका way of treatment या way of placing them in different tasks वो different होता है कि there is no such barrier? I guess in my time it was same for everyone. Like Okay. nothing different for others, but even वो male female सबको same treatment देते हैं. Like most of the people, so they treat same, yeah. And But if you're like experienced in sales, तो थोड़ा सा आपको help मिल जाता है. Sales also
in the similar kind of sales, you know. Mhm. So you can be like a little better from others. You can talk to your manager and you can, you know, ask for other things as well. So I've seen that as well. And do the people who actually have a specialization in sales and marketing, say किसी ने MBA किया होगा marketing पे, तो do they really get an upper hand or they are like I don't think so that there is any, special things or upper hand in BDA Mhm. profile. You are from a marketing, and if you really want to do something good, then there's a different department in Byju's as well Okay. for the marketing people. So you can join that if you really want to do, like, if you really want that, they can, you know, आपको value करें. Otherwise, in BDA profile, I have seen the same. Like if you're coming from a BSc background, if you're coming from a biotech background, BTech background, journalism, no matter, you will be treated like same. करेक्ट. एंड मोनिका, अगर किसी का मतलब पहले से ही एम्बिशन हो, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल से द पर्सन इज फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड और फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, पहले से ही उसका अगर एम्बिशन हो कि उसको बीडीए में जाना है या सेल्स में जाना है, तो उसका प्रिपरेशन रोड मैप क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ से उसको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में कुछ? ओके, सो फर्स्टली अगर आप मतलब लिटरली जाना चाहते हो सेल्स में, एंड द टाइप ऑफ सेल्स बायजूस फॉलो, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो फर्स्टली तो यही होना चाहिए कि आप बहुत इंटरेक्टिव होने चाहिए इन नेचर. अगर आप नहीं है तो आप उस स्किल को डेवलप कीजिए. ओके, स्किल वाइज यू शुड बी लाइक वेरी गुड इन कम्युनिकेशंस. जरूरी नहीं है कि आप मतलब आपको जो एरिया दिया जाता है, ज्यादातर आपकी जो लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब आप जहाँ से जो भी एरिया, जैसे नॉर्थ के लोगों को ज्यादातर वो ट्राई करते हैं कि वो नॉर्थ में ही डालें, बिकॉज यू नो इट्स इजी टू talk with people and convince them. So you should be good at your आपका आसपास के कल्चर, लोगों की बात करने का तरीका पता हो, समझ में आता हो. You should be at least average in communicating in English language, because this is something I have seen people कि जिनका below average भी है, they are also working there, but it's good to, you know, balance out the, तो उससे थोड़ा affect भी होता है. या स्किल्स के वे में तो यही है. Also आपके अंदर बहुत सारे पेशेंस होने चाहिए, because without that patience, तो like in our normal life we all need that, but if you are entering in sales, so you should be like आप बहुत सुपर बहुत पेशेंट. या कोई बोल के भी चला जाता है, you should be like okay chill. तो वैसा होना इम्पोर्टेंट है. देन देयर इज दैट अगर आपको क्या फॉलो करना है एक पाथ के लिए, तो दैट इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, सो यू कैन, यू नो, गिव द एग्जाम. वहीं से आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो बायजूस के लिए. You can try to, you know, connect with the people who are already working in the company, not just for asking for pros and cons and environment, but also to learn, you know, that how they're managing, you know, because I'm not saying I have already mentioned the pros and cons, but if the people, I mean, let me tell you one point as well. There are so many people who ask me that हमारे पास कोई option नहीं है, so we can join the Byju's. I really say कि you always learn something from, you know, कोई भी चीज आप करते हो आप सीखते हो. तो लिटरली अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, एंड यू हैव दैट ऑप्शन, मे बी आप एक्सेल कर जाओ उसमें, एंड यू विल बी, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है वैसा उस टाइप का लाइफ, और मे बी हो जाता है. बट योर प्रायोरिटी इज, यू नो, टू डू समथिंग, टू अर्न एटलीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, टू, यू नो, टू maintain your living, or whatever you have some responsibilities or anything, so you should go for it. exactly. I mean, किसी के रिव्यूज पर जाके, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है दैट इफ यू हैव अदर ऑप्शंस, पर आप सिर्फ सैलरी की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को प्रेशराइज करके कभी भी ज्वाइन मत करो, बिकॉज देन सैलरी भी, मुझे नहीं लगता आप उस लेवल तक पहुंच भी पाओगे जहाँ ये आपको 7 to 10 और 5 to 7 वाला पैकेज मिलेगा. ऑल्सो आप अपने मतलब जो आपका पाथ है कुछ और करने का, आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, यू नो, यू विल लॉस्ट. करेक्ट. या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बट या अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो जो मैंने बताया कि आपके स्किल्स उस तरीके के होने चाहिए, इंटरैक्टिव, यू शुड बी, यू नो, गुड एट टॉकिंग टू पीपल, और पेशेंस होने चाहिए. एंड उसके लिए आप पुराने बीडीएस से कनेक्ट होइए, आपका कोई नोन है, कुछ भी है, रीड अबाउट इट जहाँ पे भी पढ़ रहे हो. प्रोज एंड कॉन्स के अलावा चीजें पढ़ो कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एंड हाउ यू कैन अचीव अ हायर रैंक, और यू नो, अ गुड लेवल in certain company like Byju's हो या कोई other sales भी हो, कोई, it doesn't matter. Correct. So these are very like few and easy steps you should follow if you want to join Byju's or other similar company. Right. That's it. What makes Byju's, you know, a unique edtech company in India among its all other competitors? क्या unique बात है Byju's में? They have the good marketing thing, you know. They
had marketed in a like जब if you see and they also वो अपने competitors को ही मतलब add on कर लेते हैं, they हाँ. take over. तो मुझे लगता है कि अभी तो यही एक रीजन है, बट स्टार्टिंग में जो डिफरेंट बनाया था बायजूस को, देयर वाज द मार्केटिंग पार्ट. बिकॉज व्हाटएवर, कोई भी चीज अगर आपको बेचनी है, सेल करनी है, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट एंड द प्राइमरी फैक्टर. You should be good at your marketing thing. So what I think is that marketing बहुत अच्छी थी उनकी. They have chosen very right people, जो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. If I talk about, बहुत सारे लोगों ने बायजूस इसलिए दिला रखा है अपने बच्चों को क्योंकि उन्हें शाहरुख खान पसंद है. Exactly, yeah. I mean, parents are मतलब, और Celebrity endorsement. Exactly. So they have chose the right way to reach people, to make impact on their minds कि ऐसा है, अगर आप ऐसा करोगे तो you will be like, आपके बच्चे भी smart होंगे. So वैसा. And secondly, उन्होंने जिस लेवल पे लोगों को reach किया है, I haven't seen, मतलब हमारे पास पहले जो इंश्योरेंस के कॉल्स आते थे या क्रेडिट कार्ड्स के कॉल्स आते थे, उसके बाद मतलब मैंने नहीं देखा मेरे पास किसी और चीज के कॉल्स आते हुए. बट आफ्टर वर्किंग इन बायजूस, और या फिर मेरी किसी कजन ने उससे पहले मेरे फोन से या कहीं किया होगा, मतलब मुझे इतने ज्यादा कॉल्स रिसीव हुए हैं बायजूस के. तो बहुत सारे लोग तो यहाँ से भी हो जाते हैं. मतलब ऑल्सो दे हैव कोलैबोरेटेड विद द लाइक मोस्ट बिग ग्रुप ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस. That also impact. मतलब सारे अदर ब्रांड्स भी करती हैं, बट नॉट एट दिस लेवल जिस तरीके से बायजूस ने किया है. Exactly. So, मोनिका, अगर तुमको रिकॉल करना हुआ बायजूस जितने दिन तुम थे वहां से, द बेस्ट एंड द वर्स्ट एक्सपीरियंस, तो वो क्या होगा तुम्हारे लिए? So the best is that I was able to meet a lot of good people, as in के बहुत different parts जो इंडिया के थे अलग अलग, and I know them right now as well. Some are my like good friends as well. So उस चीज के मतलब, so I am really happy about that कि बायजूस happened. Also बायजूस ने मेरी एक चीज और हेल्प की है, that I was able to find my potential, that what I can do. अगर मैं यहाँ पे जहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इतने पेशेंस लगा के ट्राई कर रही हूँ, तो जहाँ मेरा इंटरेस्ट है तो मैं वहाँ बहुत कुछ कर सकती हूँ. Exactly, yeah. जब लोग बायजूस ज्वाइन करते हैं तो उसके एक सर्टेन पीरियड के बाद उनके दिमाग में ये आता है कि यार मैं अपने इंटरेस्ट के वे में तो बहुत मेहनत कर सकता हूँ और बहुत अच्छा कर सकता हूँ अगर मैं इतना करूँ तो ये एक मतलब एक कॉल भी होता है उस टाइम पे, तो इट्स गुड थिंग आई गेस. And secondly, worst though, I mean the treatment they treat people very. I mean I don't even have a word to mention here, but the culture is very toxic. I mean, at least at a manager level, the people. I mean, they are the responsible people who are training others. Correct. Not a training manager, but जो 15 days के बाद आपको जो जिस मैनेजर से आप एसोसिएटेड होते हो, मुझे लगता है उसको एक रियल लेवल पे एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहिए लोगों के साथ. Exactly. So you can't abuse someone, you can't talk people, because we all are working for the same company. You are not someone, मतलब at least you can treat person as a human. So Right. that was my first part. I mean, उनके पास कोई एक proper सिस्टम नहीं है जो देखता हो कि कैसे क्या हो रहा है. ऑल्दो अगर आप कंप्लेन करते हो तो मुझे लगता है एक्शन होता है, बट स्टिल देयर शुड बी अ प्रॉपर वे कि आप इससे ज्यादा आप किसी को इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो. सो दैट वाज समथिंग, या करेक्ट. सो मोनिका, मान लो किसी के पास मतलब रैंडमली वैसे ही क्वेश्चंस मेरे को लिंक्डइन पे भी आते हैं, काफी बार यूट्यूब के कमेंट्स में भी आते हैं. मान लो किसी के पास 2 ऑफर्स है, उसमें से एक बायजूस का बीडीए का ऑफर है, ठीक है. सो उस बंदी को क्यों वो ऑफर चूज करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इन शॉर्ट? दूसरा ऑफर कहाँ से है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. अभी मेरे रिसेंट के नीचे एक कमेंट था कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट कंपनी का है, उसमें मुझे पैसे कम दे रहे हैं, एंड देयर इज दिस बायजूस ऑफर. उसमें हम सबको पता है कि वो 7 to 10 और 5 to 7 ऑफर करते हैं, तो व्हाट शुड आई ज्वाइन? तो मैं यहाँ फ्रेंकली बहुत ब्लंटली एक आंसर दूंगी, लाइक इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट लाइक सॉफ्टवेयर थिंग, अगर आज का देखा जाए तो मार्केट में if I say about money, you'll get a like hell lot of money in your career after some time, जब आपके पास experience हो जाएगा. Correct. But give that time to learn. मतलब आप सिर्फ इसीलिए बायजूस मत ज्वाइन करो कि भाई पैसे हैं. Don't go for it, because आप एक वो शायद शॉर्ट टर्म में अच्छा कर जाओ, बट फिर आगे जाके आपको रिग्रेट हो कि मैंने क्यों नहीं किया.
अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है देन यू कैन ज्वाइन बायजूस फॉर श्योर टू जस्ट एक्सपेरिमेंट और टू जस्ट नो, और या फिर आपके पास कोई कुछ और नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है. बट जो क्वेश्चन आपने पूछा और जो मेरे पास आते हैं सिमिलर क्वेश्चंस, आई विल नॉट सजेस्ट कि अगर आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ हाँ. आप पैकेज को देख के जा रहे हो तो डोंट ज्वाइन. आई विल से थोड़ा टाइम ले लो, 1-2 महीने, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है. अगर हम इतने दिन तक डेडिकेटेडली सही अपॉर्चुनिटीज पर, रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज पर अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट दीज, कुछ तो रिस्पॉन्स मिलता है आपको. अच्छा, Okay, okay, Monica. So before wrapping it up, any particular tips which you want to give to our juniors जो बायजूस ज्वाइन करना चाहते हैं या बिजनेस डेवलपमेंट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? ओके, सो अगर इफ यू आर रियली डेडिकेटेड एंड आप कंसिडर कर रहे हो कि आपको बायजूस ज्वाइन करना है या रिलेवेंट कोई भी कंपनी ज्वाइन करनी है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू शुड नॉट बी, आपको हाइपर नहीं होना है. यू शुड बी एट योर ईज एंड पेशेंस में रहना है कि ओके दिस विल वर्क एंड आई विल डू इट. ओके, एंड जस्ट इनहेंस योर स्किल्स, जो बेसिक स्किल्स हमारे होते हैं जो हम कॉलेज में सीख जाते हैं अगर स्कूल तक नहीं होते हैं. ट्राई टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों से मिलो, उनके बारे में जानो, व्हाट दे थिंक अबाउट कि ऑनलाइन स्टडीज के बारे में, या वो अपने बच्चों को क्या चाहते हैं. तो उस टाइप से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. आप अदर देन दैट जस्ट ट्राई टू एंजॉय विद द वर्क. मतलब डोंट बी ऐसे प्रेशराइज मत हो जाओ कि दिस इज द ओनली थिंग. मतलब बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं भी है तो ट्राई करो कि 70-30 का तो रेशियो बना ही पाओ जिंदगी में. Exactly. If you're working or relevant anything. So yeah, I just want to say कि consistent रहो और मजे में काम करो, and बस थोड़ा पेशेंस रखो because that's something you will need. Yeah. That's Thank it. you. Thank you so much, Monica, for joining Placement Buddies and sharing your valuable experience. Guys, do follow out Monica's channel, Pajama Girl. A link will be in the description. And thank you so much, Monica, for giving Thank us you. time. Thanks. Okay. Bye. Bye.